صرف چینل ون نیوز پر۔ مقصد وجود کائنات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کسی آواز کو نہیں سن رہے؟ کون سی آواز؟ کسی بچے کی آواز۔ جی ہاں، قرآن پاک صدیوں سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار اس روشن حقیقت کو لے کر حاضر ہیں ہم۔ دیکھیے ہماری خصوصی پیشکش صدائے حق، صرف چینل ون نیوز پر۔ نوازہ رسول حضرت امام حسین کے چہلم کی مناسبت سے 130 ممالک کے زائرین پہنچے کربلا، حفاظت کے سخت انتظام۔ مصری کرنسی پاؤنڈ کا جاری ہے زوال، قومی کرنسی سے متعلق نئے قوانین کا نفاذ۔ مصر کے شہر نوائبہ میں گرفتار کیے گئے اسرائیلی نوجوان کی تحقیقات شروع، جاسوسی کا ہے نوجوان پر الزام۔ اور امریکہ میں یہودی مخالف سیاسی شخصیات کی فہرست جاری، اخوان المسلمین کے محمد بدی اور ایرانی صدر احمدی نژاد کا نام سر فہرست۔ آداب، میں ہوں ڈاکٹر رحمت اللہ، پیش خدمت ہے ہمارا خاص بلیٹن خبر خلیج۔ اپنی اس خاص پیشکش کے ساتھ ہم روبرو ہوتے ہیں خلیجی ممالک سے جڑی اہم خبروں کے ساتھ۔ اب خبر تفصیل سے۔ مصری کرنسی پاؤنڈ کے مسلسل روبے زوال رہنے سے سیاسی استحکام سے دوچار مصر کی خستہ اقتصادی کو نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں 2 سال پہلے حسن مبارک کے دور میں ملکی کرنسی اور معیشت دونوں کو استحکام حاصل تھا، جبکہ حال ہی میں مصری کرنسی پاؤنڈ کی ویلیو میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں مرکزی بینک کی طرف سے قومی کرنسی سے متعلق نئے قوانین کا نفاذ کیا گیا۔ سیاسی مشکلات کے بعد مصر کو اب اقتصادی بحران سے بھی دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ دراصل مصری کرنسی پاؤنڈ کے مسلسل روبے زوال رہنے سے سیاسی عدم استحکام سے دوچار مصر کی خستہ اقتصادیات کو نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں اگر 2 سال پہلے کی بات کریں تو حسن مبارک کے دور میں ملکی کرنسی اور معیشت دونوں کو استحکام حاصل تھا، جبکہ حال ہی میں مصری کرنسی پاؤنڈ کی قدر میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی ہے، جس کے نتیجے میں مرکزی بینک کی طرف سے قومی کرنسی سے متعلق نئے قوانین کا نفاذ کیا گیا ہے۔ نئے کرنسی قوانین مسلسل شدید ہوتے ہوئے اقتصادی بحران میں کمی کے لیے سامنے لائے گئے ہیں۔ مرکزی بینک کے اس اقدام کا مقصد مصری پاؤنڈ کی قدر میں منظم انداز میں اس طرح کمی لانا ہے کہ غیر ملکی زر مبادلے کے محفوظ ذخائر متاثر نہ ہو۔ سیاسی عدم استحکام اور امن و سلامتی کی خراب صورتحال کی وجہ سے گزشتہ ماہ نومبر میں صرف $448 ملین کی کمی زر مبادلے کے مصری ذخائر میں ہوئی تھی۔ اس وقت مصر میں زر مبادلے کا حجم $15 ملین کے قریب رہ گیا ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں سرمایہ کاری کے معتبر بینک کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مصری پاؤنڈ کو استحکام اگلے ہفتوں میں مشکل سے ہی حاصل ہوگا اور اس کی قدر میں کمی کا امکان یقینی ہے۔ وہیں مصری سینٹرل بینک نے کرنسی کی قدر کو مستحکم کرنے کی خاطر پاؤنڈ کی قدر میں کمی کا بھی اشارہ دیا ہے اور یہ کرنسی کو بازار حساس اور عالمی منڈی میں مزید نیچے جانے سے بچانے کی ایک کوشش خیال کی گئی ہے۔ وہیں وزیر اعظم بھی موجودہ معاشی حالت کو انتہائی مشکل اور نازک قرار دے چکے ہیں۔ قندیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے سال جنوری کے دوران انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے $4.8 ملین کے قرضے کی حصول کی بات چیت بھی کی جائے گی۔ اس قرضے کی ابتدائی منظوری عالمی مالیاتی ادارہ پہلے ہی دے چکا ہے، لیکن حتمی منظوری کو جنوری 2013 تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔
मिस्र की अलील माशियत की वजह से मुल्क के ज़र मुबादले के ज़खायर मुसलसल तहलील हो रहे हैं और पिछले 2 बरसों में सेंट्रल बैंक माशियत को संभाला देने की खातिर 20 अरब डॉलर की मसावी ज़र मुबादले का इस्तेमाल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। कुवैती अमीर शेख सबा अहमद अल जाबिर अल सबा ने इराक के साथ तमाम ज़ेर गौर मामलों को हल करने का जोर दिया है। शेख सबा का कहना है कि इराक में अब अवामी हुकूमत है, जिससे दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा रिश्तों में और बेहतरी आएगी। कुवैती वज़ारत ख़ारजा में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा रिश्तों की बेहतरी पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किया जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक मुस्तक़बिल में बगदाद में होने वाली मीटिंग में तकरीबन 9 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। दूसरी जानिब इस खित्ते में ईरान की बढ़ती ताकत के मद्देनज़र कुवैत ईरान के साथ भी बेहतर रिश्ता चाहता है। साथ ही रूस की मदद से ईरान में चल रहे न्यूक्लियर प्लांट को लेकर कुवैती हुक्काम में बेचैनी भी पाई जा रही है। अमेरिका में कायम साइमन वाइज़ेंथॉल सेंटर में यहूद मुखालिफ सियासी शख्सियात की एक फहरिस्त जारी की है। इसमें मिस्र की सबसे बड़ी मजहबी जमात इख्वानुल मुस्लिमीन के मुर्शिद आम मोहम्मद बदी और ईरानी सदर महमूद अहमदी नज़ाद का नाम सर फहरिस्त है। अमेरिका में कायम साइमन वाइज़ेंथॉल सेंटर ने यहूद मुखालिफ सियासी शख्सियात की एक फहरिस्त जारी की है। इसमें मिस्र की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात इख्वानुल मुस्लिमीन के मुर्शिद आम मोहम्मद बदी और ईरानी सदर महमूद अहमदी नज़ाद का नाम सर फहरिस्त है। साइमन वाइज़ेंथॉल सेंटर दुनिया भर में यहूद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। इसकी अपनी जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में यहूद मुखालिफिन की फहरिस्त में मोहम्मद बदी पहले नंबर पर है। वो यहूदियों की मजम्मत के लिए गाहे बगाहे सख्त बयानात जारी करते रहते हैं। इस मरकज का कहना है कि उन्होंने अपने बयानात में यहूदियों की तबाही की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। इस रिपोर्ट को इसराइली रोजनामे मारिफ ने शाये किया और इसमें इख्वान के मुर्शिद आम के बास बयानात भी नकल किए गए हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि यहूद ने दुनिया पर हुक्मरानी की थी, करप्शन को फैलाया, खून बहाया और मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की। अमरीकी मरकज की जारी करदा फहरिस्त में ईरानी सदर महमूद अहमदी नज़ाद दूसरे नंबर पर है और वो यहूद मुखालिफ तुंदो तेज बयानात देने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने बयानात में कहा था कि सहयूनी दुनिया की बड़ी ताकत को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्राज़ीली कार्टूनिस्ट कार्लोस लुत्फ को इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रखा गया है। इनसे यहूद मुखालिफ ये हरकत सरजद हुई थी। उन्होंने अपने एक कैरिकेचर में इसराइल की गज़ा पट्टी पर हालिया जारहियत को उजागर किया था। इसमें उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक फ़लस्तीनी खातून को तबाह करते हुए दिखाया। मज़कूरा रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मज़ाक़ा खेज़ कैरिकेचर इसराइल और उसके वज़ीर आज़म की तौहीन है और ये यहूद मुखालिफ जज्बात की वजाहत है। इस फहरिस्त के आखिर में अफ्रीकी अमरीकी तहरीक के मुस्लिम लीडर लुई फराह खान का नाम है। उन्होंने यहूदियों पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अफ्रीकी अमरीकियों के सीनियर ओहदों पर फायज होने की राह में हायल हैं और उनकी तरक्की के मुखालिफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इसराइल के सियासी हलकों ने मिस्र में हुक्मरान जमात फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के डिप्टी चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर डॉक्टर असामुल उरियान के इस बयान पर इंतहाई मायूसी जताई है, जिसमें उन्होंने 10 बरसों के अंदर सहयूनी रियासत के जवाल की पेशनगोई की थी। इसराइल के सियासी हलकों ने मिस्र में हुक्मरान जमात फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के डिप्टी चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर डॉक्टर असामुल उरियान के इस बयान पर इंतहाई मायूसी का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने 10 बरसों के अंदर सहयूनी रियासत के जवाल की पेशेनगोई की थी। वहीं इसराइली रेडियो के मुताबिक तेल अवीव ने ममलिकत मिस्र की कानूनी हैसियत में कभी शक नहीं किया। उसे भी अमन मुआहदे की तौसीक करने वाली मिस्री रियासत से ऐसे ही रवैये की तवक्को है। ज़राए का कहना है कि ऐसे बयानात तशवीश पैदा करते हैं, उनसे दोनों मुल्कों में मानदाना माहौल को हवा मिलती है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर अल अरियान ने आइंदा 10 बरसों में इसराइल के जवाल के बारे में बयान देते हुए मकबूजा फ़िलिस्तीन में आबाद यहूदियों से कहा था कि वो अपने असल वतन मिस्र वापस लौट आएं। उनका कहना था कि फ़िलिस्तीनियों की अपनी वतन वापसी की राह में ऐसे यहूदी हायल हैं
जो कि दूसरे मुल्कों से दुनियावी लालच में इसराइल मुंतकिल हुए हैं। डॉक्टर असामुल अरियान के मिस्र से इसराइल में आबाद होने वाली यहूदियों को दोबारा मिस्र वापसी से मुताल्लिक बयान पर मुल्क में बहुत ज्यादा लेदे हो रही है। हालांकि ऐवान सदर ने उनके बयान से बिलवास्ता लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया था कि डॉक्टर अल अरियान अगरचे सदर मोहम्मद मुर्सी के मुशीर है, ताहम उनका बयान ऐवान सदर की तर्जुमानी नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज़। मिस्र के प्रोसिक्यूटर ने साहिली शहर नवाबह में गिरफ्तार किए गए इजरायली नौजवान से जासूसी के इल्ज़ाम में तहकीकात शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक एक इजरायली को मिस्र और इसराइल के दरमियान वाक़ सरहदी इलाके ताबा में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के इल्ज़ाम में सोमवार को गिरफ्तार किया गया है और उसे 4 दिन की रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहल्लुम की मुनासबत से करबला में 130 ममालिक से ज़ायरीन पहुँच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हुसैनी अज़ादारों के काफ़िलों में 130 ममालिक के अज़ादार शामिल हैं। ईरानी ख़बर एजेंसी मेहर के मुताबिक इराक़ के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से 6148 काफ़िले करबला की समत रवां हो चुके हैं। दूसरी जानिब नजफ़ अशरफ से लोगों की बड़ी तादाद पैदल ही करबला की जानिब रवां दवा हैं। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। यह शार सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती ने हजरत इमाम हुसैन की शान में फरमाई। दूसरी जानिब दुनिया के तमाम लोगों के दिलों में भी इमाम हुसैन की इज्जत आज भी मौजूद है। तभी तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम की मुनासबत से करबला में 133 ममालिक से ज़ायरीन पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हुसैनी अज़ादारों के काफिलों में 133 ममालिक के अज़ादार शामिल हैं। ईरानी खबर एजेंसी मेहर के मुताबिक इराक के भी मुख्तलिफ इलाकों से 6148 काफिले करबला की सिमत रवां हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब नजफ अशरफ से लोगों की बड़ी तादाद पैदल ही करबला की जानिब रवां है। नजफ अशरफ से लाखों अफराद पर मुश्तमिल कारवां पैदल ही करबला की जानिब रवा दवा है। ज़राए के मुताबिक हर साल करबला में चहलुम के मौके पर बैरूनी मुल्कों से ज़ायरीन हुसैन बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, जिनमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जर्मनी, कुवैत, रूस, सऊदी अरब, लेबनान, बहरीन, शाम और अफगानिस्तान सरे फहरिस्त थे। इन ममालिक से आए बहुत से ज़ायरीन पैदल ही नजफ अशरफ से करबला का सफर तय करते हैं। वाज़ेह रहे नजफ अशरफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम का मज़ार है और करबला में शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हजरत अली हजरत हुसैन के वालिद मोहतरम हैं। यही वजह है कि दोनों बुजुर्गों के मज़ारों पर दुनिया भर से ज़ायरीन ज़ियारत के लिए जाते हैं। दरअसल 10 मुहर्रम के 40 दिन बाद हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों का चहलुम मनाया जाता है। वाज़ेह रहे आज से 1400 बरस पहले करबला के मैदान में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम और इंसानियत की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी पेश की थी। दरअसल उस वक्त का जालिम बादशाह यजीद इस्लामी कवानीन को बदलना चाहता था और इमाम हुसैन से बैत मांग रहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने उस जालिम के आगे सर झुकाना गवारा न किया, बल्कि इंसानियत और दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी और अपने घर वालों और अपने दोस्तों की जान की कुर्बानी दे दी, जिनमें इमाम हुसैन का 6 माह का बच्चा अली असगर भी शामिल है। इसीलिए दुनिया के तमाम मकतब फिक्र के लोग इमाम हुसैन को सलाम करते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज़। हिंदुस्तान ही क्या, पूरी दुनिया में साल 2012 मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं रहा। बर्मा में मुसलमान बड़ी तादाद में आज भी कैंपों में रह रहे हैं। आसाम के अंदर भी मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। 3 से 4 लाख मुसलमान आज भी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। इन्हीं हालात का इजहार जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने किया। मौलाना अरशद मदनी ने साल 2012 पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल में दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा।
मुसलमानों को लेकर अगर साल 2012 की बात करें तो हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया में साल 2012 मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं रहा। बर्मा में मुसलमान आज भी कैंपों में रह रहे हैं। आसाम के अंदर भी मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं। 3 से 4 लाख लोग आज भी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। इन्हीं ख्यालात का इजहार जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने किया। मौलाना अरशद मदनी ने साल 2012 पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल में दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा। जेलों में बंद बेगुनाह लोग इस हकीकत का जीता जागता सबूत है। हालांकि इस सच्चाई को उजागर करने की हमने हमेशा कोशिश की कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के अंदर जो मुसलमान गिरफ्तार किए गए थे अभी तक छूटे नहीं और हमारी बात सही साबित हुई। बहुत से मुसलमान बेकसूर साबित हुए, लेकिन हमें इंसाफ मिला तो हमने बहुत कुछ खो भी दिया। आज पूरी मीडिया इज्तिमाई समझदारी की शिकार बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश कर रही है। इस जिनसी दरिंदगी की जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर क्या मीडिया ने उस गुजरात को नहीं देखा जहां 15 साल पहले न जाने कितनी बेटियों के पेट चीर कर मासूम बच्चों को हलाक किया और न जाने कितनी इस्मतें लूटी गई, जिंदा इंसान जलाए गए, मगर मीडिया उस मामले में इस तरह सामने नहीं आया जिस तरह आज आ रहा है। मीडिया पर बात करते हुए मौलाना मदनी का ये भी कहना था कि बेशक मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है, लेकिन मुसलमानों के बारे में उसका रवैया मायूस कुन है। अगर मीडिया मुसलमानों के बारे में सही रिपोर्ट और सही मंजरकशी करे तो मुसलमानों को आधा इंसाफ फौरन मिल सकता है। सियासी पार्टियों के बारे में अरशद मदनी का कहना था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से हर पार्टी खामोश है। तमाम अटकलों के दरमियान गुजरात में नरेंद्र मोदी ने फिर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश रियासत की बात करते हुए मौलाना मदनी का कहना था कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों की जबरदस्त हिमायत के साथ अपने बेटे को वजीर आला बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने यूपी में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने का वायदा भी किया, लेकिन क्या 2013 में ये वादा वफा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2013 में अगर ये वादा वफा न हुआ तो 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे और यूपी के मुसलमान मुलायम सिंह यादव को उनकी समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का मौका नहीं गंवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आजकल शामी सदर बशरुल असद अपने कत्ल किए जाने के खौफ से बहुत ज़्यादा मुहतात तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं और वो अपने महल में रातें मुख्तलिफ कमरों में गुजार रहे हैं। शामी सदर खाने की चीज़ों में भी एहतियात बरत रहे हैं और उन्होंने खाना पकाने के अमल की कड़ी निगरानी कर रखी है। शामी सदर बशारुल असद को जब से ये खबर मिली है कि उनको कत्ल किए जाने की साजिश की जा रही है, तब से वो काफी एहतियात से काम ले रहे हैं। बशारुल असद हर रात अपने महल के एक नए कमरे में सोते हैं। वो दिन की रोशनी में बाहर कदम नहीं रखते क्योंकि उन्हें ये खदशा लाहक है कि वो किसी गोली का निशाना बन सकते हैं। वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत मुहतात हो चुके हैं। चंद हफ्ते कबल सरकारी टीवी पर नमूदार होने के बाद से वो मंजरे आम पर नहीं आए। तब उन्होंने कहा था कि वो शाम में ही जिएंगे और मरेंगे और मुल्क से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। वाज़ेह है कि इस्राएली फौज ने अपने इंटेलिजेंस जराये के हवाले से चंद माह कबल ये इत्तला दी थी कि शामी सदर बशारुल असद बागी जंगजुओं और सरकारी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई के बावजूद अभी तक दारुल हुकूमत दमिश्क में ही मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उनके बारे में ये इत्तला सामने आई थी कि वो दमिश्क और उसके आसपास लड़ाई में शिद्दत के पेश नज़र शाम के जुनूब में वाक़ई अपने आबाई इलाके की जानिब जा सकते हैं, जहां से वो अलवी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले वफादार फौजियों और शबीह जंगजुओं की मदद से बागियों के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन बहरान के पुरअमन सियासी हल के लिए मुज़ाकरात में उन्हें महफूज रास्ता देने और किसी दूसरे मुल्क में पनाह लिए जाने के लिए इजाज़त देने पर भी गौर किया जा रहा है और उससे मुताल्लिक उनका हिज़्ब-ए-ख़िलाफ़ के साथ कोई समझौता तय पा सकता है। ताहम हिज़्ब-ए-ख़िलाफ़ उन्हें कानून के कटघरे में लाने का मुतालबा कर रही है। चैनल 1 न्यूज़। सऊदी अरब की तारीख में सबसे बड़े बजट को मंजूरी दी गई है। सऊदी अरब के खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने काबीना के इजलास में ममलकत की तारीख के सबसे बड़े बजट को मंजूरी दी है। 2013 के बजट तजावीज़ में पैदावारी अखराजात में इजाफा किया गया है। सऊदी अरब की तारीख में अब तक के सबसे बड़े बजट को मंजूरी दी गई है।
सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने काबीना के इजलास में ममलिकत की तारीख के सबसे बड़े बजट को मंजूरी दी है। 2013 के बजट तजावीज़ में पैदावारी अखराजात में इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक पैदावारी अखराजात की मद में इमसाल 218 अरब रियाल खर्च किए जाएंगे। इस तरह इमसाल 9 मिलियन रियाल का सरप्लस बजट मंजूर किया गया है। 2013 के मेज़ाने में आमदनी का तखमीना 1236 अरब रियाल है, जबकि अखराजात 853 अरब रियाल होंगे। इस लिहाज से मौजूदा बजट सरप्लस बजट होगा। इस साल बजट में सेहत, समाजी बहबूद और ट्रांसपोर्ट के शोबेजात के बजट में 16%, जबकि तालीमी शोबे के बजट में 25% इजाफा किया गया है। म्यूनिसिपल सर्विसेज के बजट में 23% इजाफा किया गया है, जिसके बाद इस शोबे का बजट 36 अरब रियाल हो जाएगा, जबकि बुनियादी ढांचे की मद में 65 अरब रियाल मख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता बरस के मेज़ाने के हवाले से 16% ज्यादा है। साथ ही पानी, ज़राअत, सनत और दीगर इक़्तिसादी शोबों के लिए इमसाल 11% की शरह से इजाफे के साथ 57 अरब रियाल मालियत का बजट मख्तस किया गया है। ज़राए के मुताबिक बजट में तालीमी शोबों के लिए भी बड़ी रकम खर्च के लिए रखी गई है, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि तालीमी शोबों के लिए कितनी रकम मुकर्रर की गई है। इस लिहाज से ये बजट सऊदी तारीख का सबसे बड़ा बजट है, जिसे सऊदी काबीना में रजामंदी के साथ कबूल किया गया। साथ ही इस बजट में मुल्क की हिफाजत के मद्देनजर भी अखराजात में कुछ इजाफा किया गया है, जिसका खुलासा भी मीडिया के सामने नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। दिल्ली के एक कोर्ट ने एक शादीशुदा मर्द के साथ ज़बरदस्ती एक लड़की का निकाह करवाने वाले मौलाना की दरख्वास्त ज़मानत यह कहते हुए रद्द कर दी है कि शरई कानून भी बग़ैर किसी उज़्र के दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा की दलील को मुस्तरद करते हुए उनकी ज़मानत की अर्ज़ी को खारिज कर दिया। दिल्ली में इज्तिमाई आबरूरेज़ी के मामले ने जहां मुल्क भर की आवाम को झकझोर दिया है, वहीं अब असमत दरी के वाक़यात को रोकने के लिए इंतहाई सख्त कानून बनाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जहां आवाम सख्त कानून का मुतालबा कर रही है, वहीं अब सियासी कायदीन ने भी सख्त कानून के नफाज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इज्तिमाई आबरूरेज़ी के मामले ने जहां मुल्क भर की आवाम को झकझोर दिया है, वहीं अब इस्मत दरी के वाक़यात को रोकने के लिए इंतहाई सख्त कानून बनाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जहां आवाम सख्त कानून का मुतालबा कर रही है, वहीं अब सियासी कायदीन ने भी सख्त कानून के निफाज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस्मत दरी पर गम और गुस्सा जाहिर किया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन का कहना था कि ख्वातीन के साथ छेड़छाड़ और जिनसी ज्यादती के वाक़यात को रोकने के लिए इस्लामी शरीयत जैसा कानून नाफिज करना चाहिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कानून को इस्लामी कानून की तरह सख्त करने और मुलजिमों को तारीखी सजा देने का मुतालबा भी किया है। वहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बोलते हुए कहा कि मुजरिमों के लिए शरीयत का कानून ही मुकम्मल कानून है और शरीयत के कानून के जरिए ही इंसानियत की हिफाजत भी की जा सकती है, साथ ही हैवानियत को सजा दी जा सकती है। काबिल जिक्र है कि इस्मत दरी जैसे वाक़यात को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भी सख्त कानून नाफिज करने का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडरों ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को एक मकतूब लिखा है। मकतूब में कहा गया है कि लड़कियां स्कूल आते जाते बस स्टॉप पर बसों का इंतजार करते हुए निहायत गैर शाइस्ता मुकालमों को बर्दाश्त करती हैं, इसीलिए उनकी स्कूल ड्रेस स्कर्ट से बदल कर शलवार सूट कर देना चाहिए। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट राजपाल सैनी ने भी अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना था कि ख्वातीन को मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए। बहरहाल हर तरफ से गैंग रेप मामले पर बयानबाजी और मुतालबात का सिलसिला जारी है। इन बयानात और मुतालबात पर कहीं तारीफ की जा रही है तो कहीं इन बयानात को मुतनाज़िर करार देते हुए मजम्मत भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। तो खबरें खलीज में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम।